So today we have Dr. Prateek Sharma with us, Professor and Head Global Education Office, Prestige Institute of Management, Indore. He has been instrumental in driving international collaborations, enhancing academic quality system, and expanding the institute's global footprint. With over 8 years of progressive leadership at PIMR, including more than 7 years as a deputy director, has shaped key institutional functions such as curriculum development, faculty management, student development, and strategic academic planning. Beyond his work at PIMR, Dr. Sharma brings a remarkable 24 plus years of combined academic and industry experience. His leadership journey includes roles such as Registrar and Head of Vocational Courses at Oriental University, GMHR at Knowledge Island Infotech, Head of Project Management at Kriti Nutritious Limited, and Founder, Director, and Professor at Premier Management Institutes in Devas and Indore. His early career contributions in HR and international marketing with leading organizations such as Reliance Retail and Divya Chemicals add further depth to into professional portfolio. Bringing a strong academic foundation, Dr. Sharma holds Executive MBA from XLRI Jamshedpur and a PhD in International Business from DAVV, where he has secured an exceptional A++ grade for his research. His expertise spans international partnerships, cross-border education strategy, leadership development, human resource management, and global program designs. Dr. Sharma is also an innovator with several patents and copyright, including models of organizational excellence, sustainable elevation, and advanced job description frameworks. A profile researcher, he has published extensively in Scopus Index journals, authored books in international business and finance, and guided multiple PhD and MPhil students. He has been invited to deliver numerous workshop training programs and keynote speakers, and has even served as a panel member at the WTO in Geneva. His achievement have earned him prestigious recognition, including a leadership award at CMI, a Six Sigma Yellow Belt certification from Reliance Retail, and certification from esteemed institutions such as Harvard Business School and XIMB. A passionate educator, strategist, and thought leader, Dr. Sharma continues to inspire institutions, researchers, and students to embrace global perspective and drive meaningful change. We welcome you, sir. Now, I would like Dr. Vinod Mishra to please welcome, sir, with the floral. Thank you so much, sir. So now the stage is all yours. Yes, yes. Good afternoon, everyone. Post-lunch session. Always troublesome for everyone. Okay. So, I think I have designed this whole module in a way that you should not be feeling sleepy. Okay. And you need to perform more rather than I would be performing over here and giving you a lecture. Okay. So this is little bit different because they have told me that you have to take a post lunch session. Okay. So
I was not very much comfortable into that, but still I thought I should do something new for all of us. You all are future leaders. Do you accept it? Or you are still a leader? Still a leader, okay. And future leader in the form of basically some or the other institution leading in some or the other form, like a director, like a chancellor, vice chancellor, or some places. Okay. So we would be talking more about it. My topic is basically linked to academia actually. So this academia is something different from industry, and data analytics is majorly considered as a part of an industry instead of an academia. Do you consider it right or not? Have you got my question? आपको मेरा question समझ में आया? You agree with that? Okay. So the concept basically comes from industry because the data over there is much more rather than into academic. But we would talk more about academics because every result or everything comes out of the data only. All scientists, all of the people are learning softwares, but it is not related to softwares. It is more related to the understanding of those data that we would be getting out of the inputs from different features or functions of the organizations actually. So I would be talking about the academic organization. I would not be talking much more about the industry because it is not linked to us, and my topic is related to academics. So before I start, so this is something related to. Okay, so I will be talking about this data-driven decision making in academia. Have you ever faced any situation wherein you have to make a decision? Anybody? What kind of a decision have you made? Okay, choosing a specialization. Okay, so have you got the idea from somewhere, like where how have you decided for that, basically which specialization you would be taking? उसके हिसाब से आपने जज किया? They are deciding on their specializations on the basis of information. Okay, it is not related to data. How it is related to data? See, you have got a reference from somebody. Arpan has told you that this is a good specialization. You agreed on it. Have you ever checked it? How? Okay. 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 No, but I am asking whether she has checked it or not. We can check it, but have you ever checked it or not? Okay. Okay. Okay, okay. But you have checked it through some data, some or the other data. References were data earlier actually. Nowadays it is not referencing, it is basically actual data which is available in the market, which helps you to understand what kind of a specialization you wanted to opt for. Okay. So, but there is a difference actually nowadays. What is happening is that there is so much of a data which is coming from several places that authenticity needs to be there. Arpan sir has told you that you should take marketing as a specialization. Somebody else, Vinod sir, has told you that you should take HR as a specialization. I would be telling you, no, data analytics is a good field nowadays. You should go ahead with data analytics. So how will you rely on that data? That is more important. Okay. So we would be talking more about, not about the softwares, but about the data. Okay. And we would try to create something very different over here, gradually, which will help us to create a copyright. All of us will be making a copyright after the end of this workshop,
or FDP in 2 days, that we would be creating a matrix for academic institutions to basically evaluate their performances. Are you getting? So I have tried to go ahead with that. I would be teaching you several things over here, but that would not help all of us. One thing which I have created over here is that we would be in day 1 and day 2, tomorrow morning also, we would try to create a metric wherein we would be evaluating an institution and its growth path through the data. Are you getting? In the sense, like I would be doing something different over here, I would be telling you something different that would not help you, neither it will help me. But over here, I'm over here because I wanted to create something for an academic institution which has not been created earlier. Okay? So we will go ahead with this. Let us go ahead with something different. How many different institutions participants are there? Like from different institutions? Sir, from IPS Academy, we are having people from School of Law. Okay. We are having people from School of Social Sciences. Okay. Few faculty members from IPS Sawai. Okay. Then we have madam from Mumbai University. Oh, very nice. Both the colleagues just sitting there are from Geetham, Bangalore. Okay. Then one colleague is from IIM Indore. Okay, very nice. And this students from SUSC. Diversification. Okay. Diversified data. Okay. We will classify it. Okay. So basically we start with academics as an understanding of an institute development plan. We always think that how the institution would be running, what is my institution, how we would evaluate it, and how we'll move ahead to make this institution a better place to work for or better place for the students. Okay. So there are several aspects to it. So we'll go ahead with this, and because this is a part of a topic, I would go ahead and tell you that you need to analyze your institution in this format. Can you see it over there? So can you, okay. Okay, I'll give you a guideline over here because you would be analyzing your institution into different aspects. But I want that it should be in a systematic manner through data. We should analyze our institution, and we should analyze our institution in these four quadrants. Like what is the major strengths of your organization, what is the weakness, what is opportunity, and what are your concerns. So you need to basically analyze this in these aspects, please. It is given over there, I think. Yeah. So you need to analyze your organization considering these 8 points. How will you measure your organization in these 8 points actually? Like how it is in academic excellence and outcome-based education system, how it is basically in research, innovation, and entrepreneurship. So what are your strengths, what are your weaknesses? You will have to divide these 8 points into these 4 quadrants. Can you do it? Please do it. Please do it. सर उसमें पीछे दे रखा है सर. नहीं ये हाँ ये भी दे रखा है सर. ये दे रखा है सर. In governance, we can keep it. Yeah, institution culture, we can keep it. Okay, so basically we need to divide it over here, then we will segregate it into further parts. We'll move ahead into a similar manner. Yes. In these 4 quadrants, you need to mention your organization. One more point is there, that is basically finance and budgeting. But I have not considered it because that would be a part of every aspect, all the 8 aspects actually. So we can also see that some organizations have enough finance, like Mumbai University may be having enough finance or enough budgets to basically cater to all these 8 aspects. But my institution may not be having that kind of a availability, or you can say like that kind of a budget. Are you getting? So what we wanted to conclude over here is that these 8 points comprises of your strength, weaknesses, and the quadrants wherein you wanted to put it. Because from here, we will manage and develop an institutional plan.
सर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के का डेवलपमेंट प्लान है. अभी जब कंपटीशन की हम बात करेंगे, हाँ, ये दिस इज इंटरनल बेसिकली. व्हाट हाउ डू यू सी योर ऑर्गेनाइजेशन एज? हाँ, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है मैं एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता हूँ, दैट इज माय मेजर स्ट्रेंथ. हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन के लिए जानी जाती हो, दैट इज योर मेजर स्ट्रेंथ. हो सकता है इनोवेशन में आप वीक हो सकता है फैकल्टी डेवलपमेंट में हम वीक हो, आप स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी. ओके, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड बेसिकली योर कंसर्न्स. कल आप लीडर बनेंगे तो आप किसको फोकस करेंगे? मतलब लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर तो आप ऑलरेडी हैं. See, for IPS Academy, faculty development basically can be an opportunity for people, okay, because they are giving them a opportunity for developing themselves through this FDP. It's not like that. It may be like some external giving a lecture into the university, some kind of an that is a part of a competition. We are not talking about a competition right now, because competition would, once we will be talking about a competition, then there may be several threats which would be coming. It's not only collaboration and going ahead, but how your university is performing in the form of a global engagement. That we wanted to know, whether it is a strength for you or no. Because like for IPS Academy, there may be, it may not be a strength, because they are not giving an autonomy by the university. They are a part of a university. But since you are a university, you may be having several opportunities to coming up. Done. Very nice. Has everybody done it? Yes, okay. So, you must have analyzed that out of these 8, few may be in double quadrants. Like there may be some strength, there may be some opportunity. Okay. So, but if you will be talking about the data, then we will have to separate them in a particular quadrant only, because they would not be giving you an intermingled kind of a behavior. Once we will be talking about a data, है ना? So, 2 क्वाड्रेंट में कोई भी चीजें नहीं आ सकती, तो हमको उनको 8 को अलग अलग क्वाड्रेंट में करना है. ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या इसका इन्फ्रेंस आपने कहां से लिया, कोई बता सकता है मुझे कि मेरे लिए ये स्ट्रेंथ है, मेरे लिए ये वीकनेस है, मेरे लिए ये, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आपने नैक में किया था, ओके, नैक में किया, एनबीए में किया, ओके, कुछ लोगों ने एनआईआरएफ में किया होगा, कुछ लोगों ने कहीं और किया होगा, है ना? बट आपको लगता है कि अभी मैंने आपसे ये एनालिसिस पूछा है तो आपको वो डेटा याद आया है कुछ नैक का, या सिर्फ ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं? यू आर टेलिंग इट थ्रू योर एक्सपीरियंस ओनली. मिक्स्ड नहीं, नैक तो आपको पता है. मैं ये बोलूँगा 8 क्राइटेरिया जो ये हैं, आपने इसको एक क्वाड्रेंट में डाला, किसी एक को मान लेते हैं, गवर्नेंस को डाला और लीडरशिप को डाला, एक्सपीरियंस से डाला. ओके,
कितना कितना ऑथेंटिक है ये कि ये हमारी स्ट्रेंथ ही है? पूरा बायस है। लेकिन मैंने तो आपको ये सबमिट करने के लिए नहीं बोला आईपीएस एकेडमी में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको देखते हैं, आगे चलते हैं प्लीज। देखिए on the basis of all this, can you devise a vision statement for your organization? Please do it on the back side, please, sir. इसके बेसिस पे क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं? आपने अपनी स्ट्रेंथ को जाना, अपनी वीकनेसेस को जाना, अपने अपॉर्चुनिटीज को जाना और अपने कंसर्न्स को जाना। अब आपको एक विजन बनाना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन होना चाहिए। जो है वो तो छोड़ देते हैं, बिकॉज सिंस दिस इज योर परसेप्शन, सो यू नीड टू डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर है, तो विजन भी आपको ही बनाना पड़ेगा। Statement is not required. The major concept is required actually. Are you getting what I am trying to tell you? हमको विजन का एक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि आप अपने आप विजन क्या बनाना चाहते हैं। I wanted to be the best institute in academia. I wanted to be the best institution in, yeah, to be known as a research and innovation and entrepreneurship institute. Okay, so this is basically, this can be your vision statement, which would be comprising of one or two aspects. Are you getting? बना दिया आपने विजन, वेरी नाइस। याद तो नहीं किया था ना आपने नैक में? आईपीएस में नैक में याद कराया गया था, इसको याद करो याद करो याद करो। अच्छा बताएं सर प्लीज, बताइए सर प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी। अभी मिशन में अभी मैं पूछूंगा, पहले सबको विजन पूछते हैं, फिर अपन मिशन की बात करते हैं। Yes, anybody else? कोई और बताना चाहेगा? सर ने रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, और कोई? सर ये स्ट्रेंथ में था, आपके वीकनेस में था? अच्छा ये आपके स्ट्रेंथ में था, ओके। यस प्लीज। Okay, very nice, very nice, very nice. Very spiritual kind of a
vision. I'll be asking you how to evaluate that after basically completing this workshop. How we will measure that whether we have achieved our vision or not. मैं डरा नहीं. Very right. Anybody else? फिर हम आगे चलते हैं please. हाँ please बताएं. Okay, very nice. So this topic was basically in your strength or weakness? It was your strength. Okay. Anybody who has not basically targeted the statement related to the strength area? किसी ने ऐसा विजन बनाया है जो जी बताए प्लीज. वेरी नाइस जी. यस प्लीज बता रहे. हाँ यस आप बता रहे थे कुछ. Okay, very nice. So according to your vision, can you drill it down to mission? What would be the mission for achieving this vision actually? Yeah. Yeah, 1 or 2 steps, not more than that, because we wanted to know more about things actually. How we would come to the data part when we would be evaluating our vision and mission statement. How? But it should be more measurable. It should be more measurable. Measurable in the sense by having some parameters, having some timeline, having something related to measuring it and converting it to a major vision. No, but you need to mention some kind of a mission for that. Like I wanted to achieve it by 2030 through these steps, 1 or 2 steps, if you wanted to mention it. Yeah, that can be one of the yes, one of the missions. Yes, definitely. Done? बताइए please. But this is once again a vague one actually. What I wanted to communicate over here is that, how will you measure it? See, you are the director of an institution, you have laid down a vision, consider it, okay? Then afterwards, after 3 years, you are being evaluated on your performance, that you have laid down this vision. How will you measure it? So for that, you need to have something to measure on, that I have taken these steps through which I have achieved this. Are you getting what I am trying to tell you? So mission statement would be more concrete, more data driven, more timeline based, so that some activities should be performed and we should be in a position to evaluate it later on. Okay, practical education to the students. Okay, then what would be your vision? Okay, frame it, please. Yeah, please. Research, innovation and entrepreneurship. हाँ, वो ऊपर आ गया. अब मिशन इसको अचीव करने के लिए ये मिशन हो सकता है. ओके, बट मुझे लगता है कि अलाइनमेंट नहीं है उसका. अब देखिए, ये जो आप करेंगे, इसको करने के बाद में क्या आप अपने मिशन को अचीव करेंगे? वो थोड़ा सा अलाइनमेंट होना चाहिए.
Very nice. But you should have to mention some numbers over there. Like I wanted to have some startups by this age, this timeline, some, because mission statements would be more concrete and measurables. हाँ, कि कितने नंबर्स हम करना चाहते हैं, कितने ड्यूरेशन में करना चाहते हैं, बाहर से लेना चाहते हैं, अंदर से ग्रूमिंग करना चाहते हैं. हाँ, यस, हाँ, समथिंग लाइक दैट. क्यों नहीं? मिशन कभी भी वेग नहीं होता है सर. देखिए, मिशन कोई भी वेग नहीं होता है ना? नहीं, देखिए, वो आपके बेसिकली गोल्स का पार्ट है. जो आप बात कर रहे हैं वो आपके गोल्स का पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन मैं ये बोलता हूं, क्या आप ये करने के बाद में अपने विजन को अचीव कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, वही मैं पूछ रहा हूं. हाँ 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 हाँ. ओके ओके. देखिए मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए, ये सब जार्गन्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमने विजन को लेट डाउन किया है उसको हमको अचीव करना है. उसको कैसे अचीव करेंगे, या हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, वो कैसे बताएंगे? Yes, are you getting? So you should have something concrete in your hand which would be reflecting your performances later on. That is a part of a mission. Are you getting? And अब इसी मिशन को हम छोटा छोटा गोल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली क्या ये मिशन और ये विजन जो आपने बनाया है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है. अब जो सर आप बात कर रहे हैं, अब आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, तब जाके आप मेजरेबल्स तक अचीव करेंगे. आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान आता है, हमारा गवर्नमेंट 5 ईयर पॉलिसी देती है. उसको 5 ईयर क्यों देती है? क्योंकि वो हर साल अमेंडमेंट करती है, देखती है, मेजर करती है, फिर अमेंडमेंट करती है, फिर देखती है, फिर मेजर करती है, फिर अमेंडमेंट करती है. सो इट्स मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन. आर यू गेटिंग? सो वो क्या करते हैं, एक विजन स्टेटमेंट देते हैं कि हम अगले 5 साल में वी वुड बी प्रमोटिंग एजुकेशन एंड वी वुड बी हैविंग ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशियो ऑफ दिस मच परसेंटेज. ओके, एंड देन उसको कैसे मेजर करेंगे? वो इनपुट देते हैं. क्या देते हैं? फंडिंग करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं. फिर उसके बाद में उसको मेजर करते हैं, फिर देखते हैं आर वी ऑन ट्रैक और नॉट. तो दे मेंशन सर्टेन मिशंस, स्मॉल मिशंस, कि दिस इज आवर मिशंस, दैट वी वुड बी गिविंग स्कॉलरशिप्स, वी वुड बी एजुकेटिंग अनप्रिविलेज्ड, वी वुड बी डूइंग दिस. देन later on what do they do? They evaluate it on the basis of small short term, medium term and long term goals. Are you getting? But can it be done without the data? Can you rank your institution on the basis of these parameters? Can you rank your institution? Vinod sir. Yeah. Can you rank your institution on the basis of that? क्या आप अपने इंस्टीट्यूशन को, अच्छा चलो उसको छोड़ देते हैं हम, अब वही मिशन विजन को छोड़ देते हैं. अब कैन यू रैंक योर इंस्टीट्यूशन राइट नाउ? कैसे कर सकते हैं? कैन यू रैंक योर इंस्टीट्यूशन? व्हाट इज द रैंक ऑफ योर इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट तुम 8 पैरामीटर सर. 8 में से देखिए, अब देखिए, फिर वही देखिए, अब मैं वही बोल रहा हूँ, यही बार नहीं बोल रहा हूँ. मैं वही बता रहा हूँ कि हमको क्या करना है, कि हमारा रैंक कैसे जज होगा. कोई बता सकता है प्लीज? हाउ विल यू रैंक योर इंस्टीट्यूशन? देखिए, this is basically your perception. Okay, very nice. Anybody else? Yes, आप बता रहे थे कुछ. हाँ, very nice. But can an institution be ranked on the basis of 1 or 2 parameters? Weighted average. Weighted average. But see, you have laid down your vision, you have laid down your mission, you wanted to achieve a rank, but still you are not there where you wanted to be because you don't have certain data with you. देखिए, आपने अपने मन से विजन बना दिया, अपने मन से मिशन बना दिया,
अपने मन से डिसाइड कर लिया, मैं तो बोलूंगा मेरा इंस्टीट्यूशन फर्स्ट रैंक करता है, फर्स्ट रैंक्ड है। अब मैं कैसे बोलूंगा? उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि विच पैरामीटर आई नीड टू डिफाइन। जैसे उन्होंने बोला कि पैरामीटर चाहिए, तो बट हमने तो अब यहाँ 8 पैरामीटर देखे थे, और फिर हमने स्ट्रेंथ वीकनेसेस में उन 8 पैरामीटर को अलग अलग क्वाड्रेंट में डाल दिया, तो फिर हमारी स्ट्रेंथ तो सारी नहीं है ना। फिर हमने उसके बेसिस पे विजन बनाया, वो भी स्ट्रेंथ के बेसिस पे बनाया, हमने वीकनेस को शायद कंसीडर नहीं किया या कंसीडर किया। तो हम जो चाहते हैं कि हम एक डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करें, ताकि मैं अपने इंस्टीट्यूशन को एक रैंक दे पाता हूं कि नहीं दे पाता। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम देखते हैं, फॉर रेटिंग्स एंड एवरीथिंग यू नीड डेटा। ओके ओके, so okay, should I continue? Yes. So for data we'll play a small game. Okay, we'll try and understand what is data all about. Okay, I'll basically pass on some instructions over here to you people. Okay, but you need not to talk with each other, and you need to organize yourself through that information. Can you do that? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूंगा आपको उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपस में बात नहीं करना है, लेकिन सिग्नलिंग के थ्रू आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? See, I would be passing on some instructions over here. Okay, on the basis of those instructions, you need to organize yourself into certain clusters or groups, but you need not to talk with each other. Okay, got it? Okay, so we will start with the first instruction. Okay, the first instruction is your experience with the institution. The first criteria is you need to organize yourself, or leave it. It would be a bit complex. We will take it a little bit later. Okay, you need to organize yourself into your year of birth into different clusters, separating it from 70 to 80, 80 to 90, 90 to 2000. Okay, are you getting? 2000 to 2010 and 2010 to 2020. Can you do it right now? Yes, you need to reshuffle, yeah. But you need not to talk. You need not to talk. I don't know. You need to communicate between yourself, but you need not to speak. बात नहीं करनी है प्लीज। Done? Done? This is a part of this group or no? Okay, separate group. Okay. उसको मत हिलाइए सर, अभी तो रखे रहने दीजिए उसको।
अभी तो टेम्परेरी है, दिस इज मच. Okay, चलिए 70s to 80s. Who are there? 70 to 80? Two. Oh, see these two are separate from you. Why so? Because you don't want to move out of your chair. You are 70 to 80. 80. See, okay. Yes, 80 to 90. 80 to 90. Oh my God, they are also 80 to 90. See. Okay. More than 90. Okay. Before 70. This is before 70. Okay, before 70. 80 to 90. 90 to 2000. See, there is still a gap between these two. Okay. Please settle down somewhere. बैठ जाइए please. नहीं पे. Yes, this is an icebreaker because people are leaving the training session. So I had to do something. Okay, 80 to 90. Okay, 2000 to 2010. Okay. Oh, very nice. चलिए, please settle down. Okay. Now basically there are some academicians. Now basically you need to divide yourself into months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. But date of birth. No. That is the basis of basically a data driven understanding. See, there is a data available, but you need to interpret it according to your needs. Are you getting? That's why I am not allowing you to communicate. Once I will communicate the objective, it is done. Means you can filter out the data. But the data is there, but you need to understand or develop an understanding how to segregate it according to our needs. Yes, please. So January to March, April to next quarter, then June to December. 4 quarters, yes, 4 quarters. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Quarter wise, you need to divide yourself according to the quarters. January, February, March, April, May, June. हो गया? यस, वही बोल रहा हूँ मैं. क्यों? Yes. That is the kind of a miscommunication would be happening. Like for second quarter, people would be signaling second, and people would be understanding that it is the second month. Okay. So, okay. Now last segregation, and we will settle down. Okay. Please settle down along with your maintaining the same kind of a data structure. You need to settle down with your institution partners. But you need to make the groups according to the criteria I have given. Like, are you getting? Yeah.
Yes, because the numbers are not more, so it may be a possibility. Yes, same quarter, same institution. So is it meeting your requirements? Same quarter, same institution? Yes? Okay. You are the only one? Three, in the sense? Three institutions? Okay, three criteria. Okay, can you meet the last criteria? No? Same institution? Nobody was there from the institution? Okay. Then okay. ओके अभी देखिए ये क्वेश्चन इसलिए रेस किया गया है क्योंकि यहाँ देखिए या बट ही दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू सेटल विद सम डेटा तो नहीं क्लियर नहीं करेंगे सर उसको ambiguity in the data would be cleaned. Okay, so you need to follow the last instruction then because you are not finding a match somewhere. Are you getting? So data filtering जब हम करेंगे तो आपका मैच किससे होगा? इंस्टीट्यूशन से होगा. Okay, तो हम उसको देखते हैं. प्लीज आप अपने इंस्टीट्यूशन के साथ सेटल हो जाइए प्लीज. Why data matters? देखिए सब जगह डेटा की रिक्वायरमेंट है. अभी हमने क्या किया? अभी हमने डेटा को क्या किया? अभी हमने क्या किया बताइए प्लीज. हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया? डेटा को सेग्रीगेशन किया, है ना? सेग्रीगेट किया, फिर उसके बाद क्या किया? सेग्रीगेशन के बाद फिल्टर किया. फिर क्या किया? फिल्टर किया. सेग्रीगेशन के बाद हमने क्या किया? फिल्टर किया डेटा को कि हमारे लिए क्या और फिल्टर करने के बाद हमारे लिए क्या आउटपुट आने वाला है. ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? हमने फिल्टर किया, फिर जो थोड़ा सा करप्ट डेटा है जो कहीं मैच नहीं हो रहा है उसको हमने नीड बेस्ड मैचिंग किया है. नीड बेस्ड कैसे मैचिंग किया है? जैसे मैडम ने बोला मैं अकेली हूं, है ना, तो फिर हमको दूसरे डेटा के साथ मैच करना पड़ेगा बिकॉज इवैल्यूएशन में हमको डिफिकल्टी आएगा. आर यू गेटिंग? तो अब हमको क्या करना है? यहां से हमको यदि हमारी इंस्टीट्यूशन की ऑब्जेक्टिविटी को लेके चलना है कि हमको इंस्टीट्यूट का एक डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो हम वो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट प्लान तभी बना पाएंगे जब हमारा डेटा की ऑब्जेक्टिविटी किसको लेके होगी? इंस्टीट्यूशन को लेके होगी. एज को लेके नहीं होगी, डेट को लेके नहीं होगी, है ना? तो हमको समझ में आया. तो हम क्या करते हैं? हम हमारी नीड के हिसाब से डेटा की ट्वीकिंग करते हैं. आर यू गेटिंग? सो डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्शन के बाद में हम अपने डेटा को ट्वीक करते हैं और उसको पर्टिकुलर प्लेस अलॉट करते हैं. जब वो पूरा फिल्टर होके हमारे पास रिफाइंड डेटा आ जाता है तब फिर हम एनालिसिस के लिए जाते हैं. ठीक है? लेकिन उस डेटा के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है. ठीक है? अभी हम क्या कर रहे थे? परसेप्शन बेस से शुरू किया हम लोगों ने, अब हम डेटा ड्रिवन पे आ गए. तो एविडेंस चाहिए हमारे को विजन को अचीव करने के लिए, मिशन को अचीव करने के लिए कि आपने किया कि नहीं किया. अभी इस बार आपका अप्रेजल हुआ होगा, सभी लोगों का हो गया होगा, मेरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी. तो जिनका अप्रेजल हो गया होगा तो अप्रेजल किस बेसिस पे होगा? एविडेंस बेस्ड डेटा पे, कि आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे, आपने कितनी क्लासेस ली, कितने आवर्स क्लासेस में दिए, कितना एक्स्ट्रा करिकुलर किया, कितनी जगह लीड किया, है ना, कितना इनोवेशन किया. तो ये जो है बेसिकली उन्होंने डेटा कलेक्शन के बेसिस पे ही आपका इवैल्यूएशन किया. तो आपका जो विजन मिशन है ना वो परसेप्शन वाला नहीं चलने वाला. आपको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस करना पड़ेगा. ओके, सो हम डेटा को क्यों ध्यान में रखते हैं? हमको गैप एनालिसिस करनी है, हमको पता लगाना है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं. अभी तो हमने बता दिया कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है,
लेकिन आपकी कितनी वीकनेस है ये बता सकते हैं, मेजर करके बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा वीक है कि बहुत कम वीक है कि ज्यादा वीक है। मतलब एक पॉइंट है, जैसे आपने रिसर्च को कंसीडर किया कि मेरा रिसर्च वीक है, रिसर्च कितना वीक है मैडम बताएंगे प्लीज? See, madam has given a thought to it and decided that there is a weakness, but what my question was, can it to some levels, इतना weakness है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं, कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं मान लेते हैं हम एक्स कंपैरिजन है हमारा 100% है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? कैसे डिसाइड किया ये आपने? नहीं, अब ऐसे ऐसे हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली। देखिए, आपने जो इवैल्यूएट किया है वो आपने असम्पशंस के बेसिस पे इवैल्यूएट किया है। हम क्या बोल रहे हैं, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करेंगे, मेजर्स को मेजर्स से कंपेयर करेंगे, जिसको बोलते हैं हम, वेट्स को वेट से कंपेयर होगा, है ना, लीटर्स को लीटर से कंपेयर होगा। तो अब जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, so we need to come up with certain data, then and only then our gap analysis would be done, कि हमारा कितना गैप बचा है या हमारे को कहाँ अचीव करना है। यदि आपको आज मैं पूछता हूँ आपको कहाँ पहुँचना है, कितने चाहिए बताइए, आपके कितने रिसर्चर चाहिए, आपको बता सकते हैं? मेजरेबल में नहीं बता सकते। आपने बोला हमको बढ़ाने हैं, हमको अच्छा करना है, लेकिन उसको मेजरेबल नहीं बना सकते। अभी देखिए, यदि आप लोगों ने कभी AICTE के साथ काम किया है तो आपने देखा होगा कि देयर इज बेसिकली पैरामीटर wherein you need to identify इतने प्रोफेसर्स होना चाहिए, इतने एसोसिएट प्रोफेसर्स होना चाहिए, इतने लेक्चरर्स होना चाहिए, तो दैट इज डिफाइंड। तो आपको पता है कि हमको वो अचीव करने के लिए वहां जाना पड़ेगा, तब हमको एफिलिएशन मिलेगा। तो अब हम उसी की बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये हमने किया अभी, ठीक है, अब हम एक्शन की तरफ आ गए। देखिए, हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला हमने लिया था स्वॉट एनालिसिस के अंदर, वो सबसे पहला जो हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तब आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि इसको किधर डालूं मैं स्वॉट के अंदर, कंपटीशन को किधर डालूं या ग्लोबल कनेक्ट को किधर डालूं। हमने इसको क्या किया है, अभी हमको लेकिन 8 ग्रुप्स चाहिए। कितने ग्रुप्स चाहिए? 8 ग्रुप्स चाहिए। अब 8 ग्रुप्स कैसे बनाएंगे अर्पण? मैं चाह रहा था इंस्टीट्यूशन वाइज बनाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन वाइज 8 ग्रुप कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमको ये 8 पैरामीटर्स जो हमने बात की है इसको एनालाइज करना है, और अब आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। You need to work hard for it. See, okay. Before this, I would like to tell you one thing. देखिए, हमने 8 पैरामीटर्स लिए। 8 पैरामीटर्स में आपने खुद ने भी बताया कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग करेंगे तो 1 पैरामीटर में करेंगे या 2 पैरामीटर में करेंगे, है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं जिसके अंदर हम सब लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशन को इन 8 पैरामीटर्स पे रैंक करें, और वहां से हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे को गैप कितनी है और हमारे विजन को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। Are you getting? Once you devise that matrix would be helping you into basically getting to know your organization, where you wanted to take your organization to, and how do you rate your organization as. देखिए, आपका सिचुएशन अलग है मैडम, आप ब्यूरोक्रेसी में फंसे हुए हैं। इनका सिचुएशन अलग है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के साथ माइंड है। हमारा सिचुएशन अलग है क्योंकि हमारे पास ऑटोनॉमी है लेकिन फुल ऑटोनॉमी नहीं है। Are you getting? So हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन हम फिर से वही बात करते हैं कि हमारे वो जो 8 पैरामीटर्स हैं, सॉरी ओके, समझ में आया आपको? देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे विजन इसीलिए पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन थोड़ा सा कुछ अच्छा करते हैं। देखिए, हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर पाए, ठीक है। वो डेटा पे बनेगा, पूरा एक्सेल शीट्स पे ही बनेगा,
लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक एक क्राइटेरिया को एक एक ग्रुप हैंडल करें, ताकि हम जब यहां से कल बाहर जाए तो हम आठों को मर्ज करें, और आठों को मर्ज करने के बाद हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट कर पाए। आर यू गेटिंग? मेरा मतलब समझ में आ रहा है आपको? देखिए, तो मैंने क्या बोला, जैसे एकेडमिक एक्सीलेंस एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, मैं इसको कितना वेटेज देना चाहिए आपके हिसाब से? आपके इंस्टीट्यूशन को कितना वेटेज देना चाहिए? यदि ये 100 मार्क्स है टोटल, आठों चीजों को मिला के 100 मार्क्स है, तो आप एकेडमिक एक्सीलेंस एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन को कितना वेटेज देना चाहती हैं? 80? ओके, देन रिमेनिंग सबको 20%? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, सर की ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अलग है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि मैं एकेडमिक एक्सीलेंस को 30% दे दूं, लेकिन रिसर्च एंड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को 20% ही दूं, क्योंकि मेरे क्राइटेरियाज को मीट नहीं करता और उसको मेरे को आगे बढ़ाने में डिफिकल्टी आती है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? या उतना कल्चर नहीं है मेरे यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं ज्यादा वेटेज दूं। तो मैं बेसिकली एक मैट्रिक बनाने के लिए मैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को कैसे बनाता हूं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हाउ आई विल रेट ऑल दीज फैक्टर्स। तो कैन यू रेट दीज फैक्टर्स? देखिए, आगे जाइए प्लीज, आगे आपके पास एक वो स्लाइड है, आगे एक स्लाइड है प्लीज, आगे जाइए, सबसे आखिरी पे जाइए प्लीज। आठों के बाद में जाइए प्लीज। ओके, यस प्लीज, दिस वन। ओके, ये दे रखा है सर, इधर इधर देखिए सर, ये आपको दे रखा है पीछे। हाँ, और थोड़ा सा आगे जाइए सर प्लीज, एक और 2 स्लाइड आगे, 8 स्लाइड आगे। Can you allot a percentage to this? So that it should become 100%. Yes, it should reach 100%. You can also consider the 9th one, but it is more related to finance and budgeting. That may not be having control, or you may not be having control on it. नहीं मिला? सब पलटा रहे हो? 8 के बाद जाओ ना सर, 6, 7, 8, ये 8 है, ये इसके पहले वाली स्लाइड में भी दे रखा है शायद मैडम, 9 पूरे, ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मैं वो दिखाता हूँ इसके पहले वाला, सॉरी। Done? Done, okay. Done? Done, okay.
You can do it in groups because like I have asked you to do it in groups because I have made you to sit in groups because you would be evaluating your own institution. You will be developing a metric for your own institution. So your own institution would not be different for everybody else. So you should have a consensus on the percentage that you divide. Weightage. हो गया सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत फास्ट हो सर आप. अच्छा, फास्ट मंगलवार को होता है. ओके, आई वाज नॉट नोइंग दैट. ओके, सो होप आप लोगों ने डिवाइड किए होंगे क्राइटेरिया को, परसेंटेज दिया होगा. हम आगे चलते हैं. ओके, सो अभी देखिए हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं, है ना. किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से फर्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं. कितना परसेंटेज दिया है हम, आप बता पाएंगे प्लीज? फर्स्ट क्राइटेरिया को कितना परसेंटेज दिया है? 25. ओके, आपने 20 दिया है, आपने 15 दिया है, आपने 20 दिया है. वेरी गुड. 20. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब देखिए इसको मेजर कैसे करेंगे, एकेडमिक एक्सीलेंस को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमने उसको सेग्रीगेट किया है. क्या किया है? हमने उसको सेग्रीगेट किया है. करिकुलम एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करिए. अब 20 को इसमें कन्वर्ट करेंगे हम, मतलब 20 तो हमारा ओवरऑल वेटेज है. जो इसका रेफरेंसेस आएंगे हमारे पास, जो इनपुट आएगा उसको हम 20% में वेट कर देंगे. ओके, सो अब आप बताइए करिकुलम एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर के लिए डेटा में क्या चाहिए आपको, क्या देखना चाहिए आपको? देखिए वो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद देखिएगा आप. हाँ वो इसी का पार्ट है. यस राइट. हाँ, तो वो इंडस्ट्री से अलाइन है कि नहीं, एक वो क्वेश्चन हो सकता है. दूसरा, हाउ विल यू रेट योर करिकुलम इनटू अ मेजरेबल डेटा? हाँ, ओके, एम्प्लॉयबिलिटी कैन बी वन थिंग. अभी देखिए यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, अब आप इसको पहले पढ़िए एक बार प्लीज. कोर्स परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट, कोर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका असेसमेंट कैसा रहा, उसमें कितना स्कोर किया बच्चों ने, कितने फ्लंक किए, है ना. दूसरा, सीओ अटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ. सीओ पीओ की बहुत सारी कहानी है आजकल, है ना, और पीएसओ की भी बहुत सारी कहानी है. तो अटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, हमने उसको एग्जाम के थ्रू अटेनमेंट किया कि नहीं किया, हमने उसको किस तरीके से डिवाइड किया, है ना, और हमने किस तरीके से असेसमेंट्स किए. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने क्या यूज किया, टेक्नोलॉजी में क्या यूज किया, क्या नहीं किया. अब इनको पैरामेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, बताएंगे सर प्लीज? कोई बताएगा प्लीज? देखिए इसको वेट देना है हमारे को. जब तक हम वेटेज नहीं देंगे तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि हम अच्छा स्केल. ओके, 1 से 10 दे देंगे आप, लेकिन कौन बताएगा इसमें आपको? मैंने तो बोला कि करिकुलम मेरा बेस्ट है, इंडस्ट्री से मैच है ना, इंडस्ट्री का इनपुट है. कौन बताएगा? डेटा. डेटा कहाँ से आएगा? यदि आपने उसको सर्वे ऑप्शन में छोड़ दिया तो फिर सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो अभी हमको ये जो 8 सेग्रीगेशन करने हैं, हाँ, ओके ओके ओके, मैं थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर मैं 1-2 मिनट में कुछ दिखाता हूँ आपको, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम इन सारे 10 जो हैं, 10 हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स को मेजर करेंगे. यदि हम इनको मेजर कर पाते हैं तो हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस आउटकम बेस्ड एजुकेशन का स्कोर आएगा. क्या आएगा? स्कोर आएगा. यदि हमारा, आपने उसको 20% वेटेज दिया है और यदि उसका स्कोर हमारा 100 में से सिर्फ 10 ही आ रहा है, तो अब आप 20 में से डिवाइड कर लीजिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं. ठीक है,
इस तरीके से हम एक मैट्रिक पूरा डेवलप करेंगे, एक्सेल में डेवलप करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा होमवर्क पहले करिए पेन एंड पेपर पे, फिर हम उसको एक्सेल पे लेके जाएंगे। एक्सेल में फिर उसको मेजरेबल बनाएंगे, मेजरेबल बनाने के बाद एक मैट्रिक डेवलप करेंगे। मैट्रिक डेवलप होगा, उसके बाद में हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस का डेटा उसमें फिट करेंगे और उसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, और फिर उसको हम एक कॉपीराइट में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें आप सबका नाम होगा। ठीक है, तो अब आप इसको इवैल्यूएट करने के लिए प्रोसेस बनाइए। अब आप बताइए 8 पैरामीटर्स में आप अपने आप को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा मेरे को बताइए। अर्पण 8 पैरामीटर्स में डिवाइड करना है 8 ग्रुप्स में। हाँ हाँ, तो इंस्टीट्यूशन वाइज करने के बाद जो इंडिविजुअल रहता है तो उनको फिर हम अलग ग्रुप में कर सकते। ठीक है, या तो हम इंटरेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन में यदि आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, मेरा सिर्फ ये कंसर्न है। फिर आप अपना इंस्टीट्यूशन का एक मैट्रिक बनाएंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है आपके लिए एकेडमिक एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए उसका वेटेज कम है। हालांकि वो बहुत इर्रिस्पेक्टिव है, आखिरी में जाके हम वेटेज मीट कर देंगे, क्योंकि हमारे को क्या है 100 को 40 में कन्वर्ट करना है या 100 को 20 में कन्वर्ट करना है, वही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जब हम ये 10 चीजों को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो अर्पण पहले तो हम डिवाइड करें, वॉलंटरीली डिवाइड हो जाए 2-2 3-3 लोग प्लीज, और एक वो ले लीजिए प्लीज पैरामीटर्स। मैं बताता हूँ कौन कौन से पैरामीटर्स को लेना है। यही 8 पैरामीटर्स है हमारे पास। हाँ, एक ग्रुप को एक पैरामीटर सर, मैं बताऊंगा ना। डेटा नहीं, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा हम फिट करेंगे बाद में, आप समझ गए? मतलब हमको एक स्केल बनाना है। पंडित रविशंकर विश्व रायपुर। ओके, हाँ, सबसे बड़ी 2 मिनट लगेगा बस। देखिए आप तो पहले ये डिसाइड कीजिए आप किसको इवैल्यूएट करना चाहेंगे। देखिए इसमें है ना, आपको पूरा डिटेल दे रहा है। हाँ देखिए, ये देखिए जैसे आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है, तो अब आपको इसको असेस करने के लिए 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स के अंदर हमको क्या क्या करना है, पीईओ को एनालाइज करना है, पीओस को एनालाइज करना है, सीओ को करना है, मैट्रिक्स को बनाना है, मैट्रिक्स में सीओ पीओ मैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब देखिए उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, ऐसे देखिए, इधर देखिए हमने क्या किया, स्टूडेंट का डेटा लिया, हमने एक स्टूडेंट का डेटा लिया है ना, अभी मैं दिखाता हूँ।
इसको मेजरेबल में कन्वर्ट करना है। अब मेजरेबल में हमने कैसे किया, देखिए स्टडी करना है, बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट इज स्टडीइंग, हिज अटेंडेंस परसेंटेज इज हाउ मच, हिज इंटरनल मार्क्स इज हाउ मच, हिज एक्सटर्नल मार्क्स इज हाउ मच, टोटल मार्क्स इज हाउ मच, एलएमएस का यूजेज कितना परसेंटेज इसने किया, उसके बाद में हमने लिया कि असाइनमेंट सबमिशन समय पे किया कि नहीं किया, उसका एक वेटेज दिया। देन व्हेन सीओ पीओ अलॉटमेंट मतलब जो हुआ था सीओ को पीओ से बेसिकली मैपिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसने कितना अचीव किया, उसके अकॉर्डिंगली उसका मैट्रिक बना, ठीक है। उसको आप आगे देखेंगे, देन यू विल सी दैट स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो कितना आया है, सॉरी स्टूडेंट के फीडबैक का स्कोर कितना आया है, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको। देन फिर हमने क्या किया, करिकुलम को एनालाइज किया, कैसे, प्रोग्राम का रिलेवेंस इंडस्ट्री स्पेसिफिक कितना था, कोर्स फ्रेमवर्क और एलो कवरेज कितना हुआ, देन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस कितना रहा, मतलब हमने किस तरीके से डिवाइड किया, इलेक्टिव ऑप्शन स्कोर कितना रहा, सिलेबस अपडेट फ्रीक्वेंसी कितनी रही, कब कब हमने अपडेट किया, क्या क्या किया, उसका एक वेटेज है। तो ऐसे करके हमने हर पैरामीटर को सब ब्रेकअप किया, सब ब्रेकअप करके हमने एक फाइनल मैट्रिक बनाया, क्या किया, एक फाइनल मैट्रिक बनाया, दिस इज योर फाइनल मैट्रिक, समझ में आ रहा है आपको। सो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, आपके क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती है, उसके हिसाब से यदि आपने फर्स्ट पैरामीटर लिया है तो करिकुलम को एकेडमिक एक्सीलेंस में कैसे इंक्लूड करके हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, हाउ डू वी डू इट, समझ में आ रहा है सर कि नहीं आया। अब आपको वो डिसाइड करना है ना, आप लोग आठ ग्रुप में डिवाइडेड है, यू नीड टू डिसाइड। देखिए यहाँ आपको डिटेलिंग दे रखा है, मैं पीछे ये फैक्टर्स का डिटेलिंग दे रखा है, ये देखिए जो भी फैक्टर आप लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यू वांट टू टेक एकेडमिक एक्सीलेंस, तो एकेडमिक एक्सीलेंस को इन बेसिकली 10 पॉइंट्स में हमने कवर किया है। इन 10 पॉइंट्स को कैसे आपको इवैल्यूएट करना है, उसके लिए आपको एक मैट्रिक बनाना है, आप समझिए। ऐसे ही अगला है, हेलो हेलो हेलो, yeah, we will basically start with an Excel sheet, but first of all you need to understand one thing, that over here there are parameters given, okay, for curriculum and program structure data we wanted to analyze, so we need to analyze what is basically what are your PEOs, how your PEOs are set, how basically your course structure is there, course outcome is there, COPO mapping is there or not, how much they have achieved into this. So this is a similar kind of a metric that we have created. So you need to develop for one header actually. Any one thing, whatever you wanted to decide. Any one header means out of 10, any one. Any one. Out of 8, any one. No, out of these 10, no. Out of this one header, you will have to basically select only one. One topic, bas, that's it. And then you need to develop it according to your institutional understanding. Hello. Academic excellence, yes. So this is basically a guideline for academic parameters. You will have to have a header, curriculum and program structure data. See that we have created it over there. मैं आपको दिखाता हूँ. See, this is a curriculum structure. Okay. So what we have done is that we have taken students and we have evaluated them. On the basis of those mark sheets, we have taken their program relevance to industry percentage, then course framework, whatever have you have designed, and similarly that the data that is coming up is the percentage form. So आखिरी में जाके वो हम क्लब करके उसको 100% कर देंगे. तो आपके ये जो 10 points हैं, these 10 points are divided into single worksheet, wherein we will have to evaluate the data for the students, and then we will come up with a matrix. और जब ये मैट्रिक आप कंपाइल कर देंगे किसी भी एक का, we will club it up with other matrix, and then basically it's a 8-pointer holistic approach towards an institutional development matrix. Are you getting? तो हम आप अपना काम करिए, वो उनका करेंगे, then we will merge. हाँ. नहीं, आप तो इसको 100 पे इवैल्यूएट करिए, आप समझे, इसको 100 को फिर हम 15 में ले जाएंगे. आर यू गेटिंग?
मैपिंग ही करनी है हमको, तो स्केल डाउन करना है, मतलब 100 स्कोर को हमको स्केल डाउन करना है. यू स्कोर 70, कंसीडर सेम नहीं आपका, मतलब आपका वेटेज एक्टिविटी वेट. देखिए जैसे आपने आईपीआर को दिया 10 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी दिया, तो आपने आईपीआर में देखा कि आपके यहाँ आईपीआर में बेसिकली 5 मार्क्स देना सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आईपीआर की तरफ नहीं जाते, तो हम आईपीआर के लिए 5 मार्क्स देते हैं. अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके इवैल्यूएशन का टेक्निक. हाँ, तो वो ये सब इसमें दे रहा है, ये इसमें दे रखा है. देखिए देखिए क्या लिखा है मैडम, मेरे को दिखता नहीं एक्चुअली, 5 का चश्मा है. हाँ 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 हाँ, आप समझ गए. तो इसको हम फ्रेमवर्क में लेके डेटा में, हाँ, तो ये जैसे आपने एक फैकल्टी को इवैल्यूएट किया, तो आपने देखा कि ये 5 पैरामीटर्स में से उसने कितना अचीव किया. ये एक शीट हो गई आपकी. दूसरी शीट कौन सी हो गई, इसके ऊपर वाली हो गई कि रिसर्च में उसने कितना किया. हाँ 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 हाँ, यस यस यस, समझ में आया. मतलब अब आप इसको एक्सेल शीट पे बना सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन अभी पहले इसको समझ लें अच्छे से. हाँ, तब अपन इसको, हाँ, सेकंड को आपको करना पड़ेगा. See, listen 1 minute please. हेलो, लिसन एक मिनट प्लीज. आप लोगों ने फर्स्ट लिया है ना, इन्होंने फर्स्ट पार्ट लिया, आपने सेकंड, सिक्स, थर्ड किसी ने लिया है, और फर्स्ट आपने भी लिया, इन्होंने भी लिया, ऐसे नहीं चलेगा. वो इसलिए एक्चुअली क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 8 लोग जब पकड़ कर, तब हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया को मीट करके एक मैट्रिक्स बना देंगे. तो आपको कोई और लेना पड़ेगा. 7th, ओके, 7th, 6th हो गया, 7th हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 5th, 8, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 5th, 6th, 7th, 6th कौन है, 6th आप, 7th ये है, 8 आप हैं, 4 बचा है, 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4, 3 they have taken, 4 you should take. Yes, so the fourth criteria is given over here. You see, this is research. No issues, sir. No faculty development. Huh? नहीं, देखिए लिसन 1 मिनट प्लीज, लिसन 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज. देखिए there is an understanding gap. The gap is basically you need to work on your own criteria. First thing, you have to give 100 marks to that weightage, 100 marks in the form of a weightage. Whatever weightage you have decided earlier, that is for a whole metric, we will convert it into that metric only. आपको समझ में आ रहा है. आपने यदि 15% वहां पे आगे दिया था, that is irrespective of the internal weightage. Internal weightage you should give 100 because somewhere there are 8 points, somewhere there are 10 points. वहां से हम 100 मार्क्स लेके आएंगे, 100 मार्क्स को फिर हम 15 मार्क्स या 20 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे. आर यू गेटिंग? It's not like that. It may depend on your priorities as well. Like your institution wants that it should be more of a Scopus papers or more of a research, है ना? So research may be getting a more weightage for a Scopus index. Then instead of basically normal research for a UGC or something like that. Are you getting? So you need to decide that.
देखिए 100 इसलिए करवा रहा हूँ, आप जब अपना इंस्टीट्यूशनल का असेसमेंट करेंगे, जब हम 8 पैरामीटर्स को मिला देंगे तो आपके लिए सबका 100 है। अब आप जो भी फीडबैक देंगे वो आपका 15 मार्क्स में कन्वर्ट होना है या 20 मार्क्स में कन्वर्ट हो रहा है, बाहर का मैट्रिक आपका खुद का बन जाएगा। तो वही तो डेटा निकालना है हमको, वही तो आपको उसका नहीं, डेटा नहीं निकालना, अभी हमको फ्रेमवर्क बनाना है। डेटा फीड तो अपन बाद में कर लेंगे, आप समझ गए। ये तो आपने बेसिक फ्रेमवर्क बनाया। अब देखिए इस पर एक मिनट सुनिए ना, बुक चैप्टर्स क्या लिखा है, बुक्स एंड मोनोग्राफ। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप? हाँ, तो आपको बेसिकली एक्सेल शीट पे ये देना पड़ेगा। एक्सेल शीट पे नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है हेडर है, उसमें 4 हेडर सब हेडर्स बनाने पड़ेंगे आपको एक्सेल शीट के ऊपर। उसमें आपको वेटेज को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, इस 15 को 10 को, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। तो जितने पब्लिकेशंस होंगे उतने मार्क्स मिल गए उसको। तो एक्सेल शीट पे हमको बेसिकली इसको बनाना है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी देखिए, जैसे आपने ईआरपी खरीदा, सेंसर आपने ईआरपी खरीदा, यू हैव परचेज्ड एन ईआरपी फॉर 80 लाख रुपीस। आई हैव हर्ड दैट, न्यूज़पेपर में आया था कि आईपीएस ने खरीदा। तो बट द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट कि वो एलएमएस का यूज कितना कर रहे हैं। That is basically the metric wherein we should be using कि भाई हमारा आउटपुट कितना है उससे, मतलब उसके ऊपर रिटेंशन टाइम कितना है। हाँ नहीं, उसको एक फ्रेमवर्क में हम इवैल्यूएट करेंगे कि एलएमएस, जब स्टूडेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो एलएमएस का यूजेज उसने कितना किया, कितने घंटे वो एलएमएस पे रहा। आर यू गेटिंग? सो दैट वुड बी गिविंग यू एन आउटपुट फॉर कि 80 लाख रुपए देना सही है कि नहीं है। सीख रहा हूँ मैडम, सीख रहा हूँ। आप इनको देख के तो मैं डर भी गया था बाहर, बट डेफिनेटली मैम। I don't have a card. मुझे गर्मी लग रही है, आपको गर्मी नहीं लग रही? क्या तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए ज्यादा लग रही। हाँ, सही। शब्द ब्रह्म भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहे हैं। वेलकम। या डेफिनेटली मैम। तो सोचो गुरुदेव, हाँ बस बहुत बढ़िया। नहीं नहीं देखिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में दिया है उसको दिया है मैंने पीडीएफ में। नहीं 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 नहीं, कॉपी पेस्ट करना है आपको। उसको वो दे देगा ना, अर्पण दे देगा। अर्पण को दिया सर मैंने। नहीं आया उसको, वेटेज को कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग डेटा के थ्रू। अभी आपको डेटा नहीं लाना है उसके अंदर, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि हम यदि करिकुलम को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो किस किस पैरामीटर्स पे कर रहे हैं और क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, और उसका वेटेज कंक्लूड होके कैसे होने वाला है। यू कैन यूज और टेक हेल्प ऑफ बेसिकली एआई, जितना भी है मार्केट में सबको यूज करिए, है ना। और आप एक एक्सेल शीट पे इसको कन्वर्ट करके लेके आइए ताकि हम लोग इसका एक मैट्रिक डेवलप कर पाए। देखिए एआई को यूज करना बुरी बात नहीं है, उससे क्या इन्फ्रेंस लेना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी वुड बी टेकिंग एन इन्फ्रेंस, और हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों ने अभी तक कॉपीराइट नहीं लिखा होगा, तो इस बहाने एक कॉपीराइट हमारी तरफ से आप सबके लिए, ठीक है। इस मॉडल में आपका भी नाम होगा, ठीक है, क्लियर। सो हम एक कॉपीराइट लिख देंगे
वो बात की बात है, एक बार मैट्रिक डेवलप हो जाने दीजिए, तो फिर हम मैट्रिक से के अकॉर्डिंगली सबका नाम लिख के कॉपीराइट डेवलप कर देंगे, ठीक है। सो आई कंक्लूड इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अ पेशेंट ऑडियंस, है ना, थैंक यू वेरी मच, लेस इन नंबर्स बट इट्स ओके। स्थान ग्रहण कीजिए। ओम। ओके। सो डियर कलीग्स, या अटेंशन ओवर हियर, या कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। हमारे सबसे कनिष्ठ साथी मतलब उत्पल सर ओके, तो सभी ध्यान दें, बहुत बहुत मज़ेदार सेशन हुआ। डाटा मैट्रिक्स का एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आपके हाथ से हो तो ज़्यादा बेटर है। तो वी लर्नड ए लॉट ओवर हियर, और मेरी भी आंखें खुल गई कि हमारा जो नैक का क्राइटेरिया है 8 पैरामीटर्स पर, अब 10 पे होता है, इस साल से 10 पे है। तो 10 पैरामीटर्स को हमें कैसे अपने लाइफ में, क्योंकि हम सब एकेडमिक्स में हैं ही, तो हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटेड, हाउ इज़ इट एनालाइज, इवेलुएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, ये हमें पता लगा कि कैसे करना है, और अपने हाथ से करके देखने का मज़ा अलग है। और अभी भी बहुत सारी उलझनें हैं। एक अपॉर्चुनिटी और प्रतीक सर ने क्रिएट की है कि अगर हम इस पर काम कर रहे हैं तो ये हमको कॉपीराइट दिलाने वाले हैं, जो हमारे प्रोफाइल में बहुत क्रेडिट वाला होगा। ऐसे पेटेंट भी, मैं एक पर्सनल बात शेयर करूं, प्रतीक सर को बहुत लंबे समय से जानता हूं। प्रतीक सर ने पेटेंट कराए हैं बहुत सारे, लेकिन इन्होंने बांटे हैं। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ लो अच्छा है ना। तो बहुत सारे इनके साथ पेटेंट में 7, 8, 10 लोगों के नाम हैं कि काम करें, ठीक, आने दो सबका नाम, क्या बिगड़ता है, मेरे पेटेंट तो है ही, लेकिन सबका नाम हो जाता है। तो ये है शेयरिंग, ये है पब्लिक शेयरिंग। और ये पर्सनल लेवल पर कहूँ तो प्रतीक हमारे ईगो स्टेट से बाहर जाके सबका है भाई, ये समाज से ही आ रहा है ज्ञान, तो बांटना सबको, सबको अपने साथियों को बेनिफिट पहुंचाना और मदद करना। तो ये पर्सनल लेवल पर कह रहा हूँ, इसलिए उन्हें एक नई बात और कह दी कि कॉपीराइट स्तर पर भी हम जा सकते हैं इस पर, और ये एक नया काम होगा, जाएंगे ही, यस तो ये बहुत, तो कल सुबेरे सर मिल रहे हैं, फिर से हमारे साथ हैं, और एक नई ऊर्जा, नए आनंद के साथ। और मैं फिर से व्यक्तिगत कहूँ कि मुस्कुराते हुए लोग ज़िंदगी को ज़्यादा जीते हैं। और अभी तक तो इस सेशन में ऐसा हो कि मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आया सामने तो अच्छा लगता है, तो मुस्कुराहट, तो ये अच्छा लगा कि, और सबके साथ में इन्वॉल्व हो करके। और फैकल्टीज़ को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप फैकल्टी हो रहे हैं तो मंच के पीछे ना रहें, है ना। मैं जैसे पोडियम के पीछे मैं भी नहीं रहना चाहता, और प्रतीक सर भी आए तो आपके बीच में आए, तो हम सब आसानी से जुड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं। आप भी जीवन में रखिए, आप जितना पोडियम के पीछे जाएंगे आपकी पर्सनालिटी छुपेगी, और आप जितने सामने आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए सब आपके साथ मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हमने सीखी है। हम इसी बात पर प्रतीक सर का सम्मान करते हैं, और एक टोकन ऑफ लव एंड रिमेम्बरेंस उनको भेंट करते हैं। क्या नाम, साहिबा मैम, वो रखा हुआ है टोकन ऑफ लव। और प्रतीक हमारे सबसे कनिष्ठ साथी जो हैं उत्पल सर सबसे युवा साथी हमारे उत्पल सर हैं, यस तालियां, जोरदार तालियां बजा दें, यस। और ग्रुप फोटो के लिए सब लोग आ जाएं, सर के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए।